This is my world. Here, knowledge is my best friend that addresses me towards success. Welcome to the Pioneer International School. 20 એકરમાં ફેલાયેલું પાટણનું એકમાત્ર ગ્રીન કેમ્પસ. Digital classroom, updated library, kids park and world-class sports facilities, world-class curriculum, music and dance, science and computer lab, community awareness program, safe transportation facility. Every child is unique. જરૂર છે એમને ડેવલપ કરવાની અને આ કામ ફક્ત એક યુનિક સંસ્થા જ કરી શકે. To develop my future, so I am here. Pioneer International School. Admission open at Golapur, Patan. Good afternoon, students. Myself, Ratan Rajput. I will teach you chemistry for CBSE, GNEET, and other entrance examination. Our topic, students, first chapter of chemistry, basic concept of chemistry, and then atomic mass or molar mass. What you know about atomic mass? Atomic mass or molar mass. Molar mass. Mass of one atom is based on carbon 12. कार्बन 12 के बेस पे एक एटम का मास डिटरमिनेट किया गया है. एटॉमिक मास. हाउ कैन यू कैलकुलेट एटॉमिक मास एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज यूनिट इज unified, which is denoted U. Mass of one atom. Atomic number first is hydrogen. So mass of hydrogen is 1.008. After then atomic number 2 is helium. Atomic number 2, mass of helium is 4. Then lithium. Atomic number 3, mass 7. Atomic number 4, beryllium, mass 9. Atomic number 5, that is boron, mass 11. Atomic number 6, carbon, mass 12. 7, nitrogen, mass 14. 8, oxygen 8, mass 16. Fluorine, atomic number 9, atomic mass 19. And 10, neon, atomic number 10 and mass number 20. This is denoted by Z. Atomic number is denoted by Z. X
is the symbol of that element and A is the mass, atomic mass. Unit of atomic mass is unified ZXA. After then, atomic number 11, sodium, and then mass of sodium is 23. 12, magnesium is 24. 13, aluminum, mass of aluminum is 27. 14, silicon 28, and then mass of phosphorus is 31. Sulfur, atomic number 16, mass is 32. Chlorine 35.5, and then argon ZXA. Atomic number 18 is the argon, and mass of argon is 40. After then 19 is potassium. Mass of potassium is 39, and then calcium 20. Mass of calcium is 40. Atomic mass is based on carbon 12 and atomic number 1 to 20. Atomic number is equal to number of proton and number of electron. A is the atomic mass or mass number, and unit of atomic mass is U unified or gram, GAM, gram atomic mass. Mass of hydrogen is 1.008, mass of helium is 4, lithium 7, beryllium 9, boron 11, and then carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, and fluorine mass 19, and then neon atomic number 10, so mass is just double 20. 11, sodium. Atomic mass of sodium is 23. Atomic mass of sodium is 23. Atomic mass of magnesium is 24. Atomic mass of aluminum is 27. And then atomic mass of silicon is 28. Phosphorus P 31. And sulfur 32. Chlorine 35.5. And then argon 40. And potassium 39. And calcium 40. तो कैसे इन एलिमेंट को दिमाग में रख सकते हैं हमको लर्निंग 20 तक तो आपको पता होगा, नियर अबाउट 20 तक आप 9th में पढ़ के आए हो. फिर भी हाय हेलो बेबी बॉय, कनो फनी फनी, नामग अलसी, फर्स्ट क्लियर काय का. 21 से आगे एटॉमिक नंबर याद रखने का तरीका, एक लाइन आप याद रखिए. सतीव कर्मण फैकोनी कुंजन. सतीव कर्मण तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. सतीव कर्मण ठेको निकुंजन, ठे को नि कुंजन. तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं. एटॉमिक नंबर 26 पे फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक. तो ये बेसिकली एटॉमिक नंबर 30 तक आपको लर्न हो जाने चाहिए. एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 हो तो हाइड्रोजन, 2 हो तो हीलियम, 3 फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. आफ्टर एटॉमिक मास आपको निकालने के लिए एटॉमिक नंबर 20 तक तो आप याद होना ही चाहिए. 21 से 30 तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट हमको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी. सतीव कर्मण फैकोनी कुंजन. स्कैंडियम, स बोले तो स्कैंडियम, टी बोले तो टाइटेनियम, व बोले तो वेनेडियम,
क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस तरह से हम 30 तक पहुंच जाते हैं, 21 to 30 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से नियर अबाउट टू अपने को वैसे एटॉमिक मास बुक के एनसीईआरटी में किसी की तरफ दिया है, आप उसको लर्न भी कर सकते हो। वैसे एग्जामिनर दे देता है पेपर में, आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब हम एटॉमिक मास निकालने की टेक्निक पता करेंगे विद्यार्थियों। एटम का पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट एटम का मास होता है वो एटॉमिक मास होता है। उसकी यूनिट यू यूनिफाइड होती है, यूनिफाइड अथवा हम ग्राम भी कह सकते हैं। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पे हम बात करें कि टू और मोर देन टू एलिमेंट आर इन कंबाइंड फॉर्म एंड फॉर्म कंपाउंड। टू और उससे ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड का जो मास होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और टू एलिमेंट कंबाइन होंगे तो क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, और उस मॉलिक्यूल का मास होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। सपोज मास ऑफ कैल्शियम आपको कहा तो आप क्या लिख लोगे, कैल्शियम का मास 20 यू बोले तो यूनिफाइड, तो ये हो गया। अथवा हम इसको कह सकते ग्राम भी कह सकते हैं, ग्राम। कैल्शियम का मास कितना होगा, 20 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम में 20 ग्राम या 20 यूनिफाइड। तो ये कैल्शियम का मास हो गया 20। अब ये कैल्शियम के दो से ज्यादा एलिमेंट, एक कैल्शियम है कंबाइन होता है 1 मोल ऑफ कार्बन के साथ और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो एक कंपाउंड बनाता है, उसका नाम हो जाता है CaCO3। तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। ये क्या है, एटम, एटम एंड देन एटम, 3 एटम। ये 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम है। तो ये आपस में कंबाइन होते हैं, मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का वेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इस कंपाउंड के मास को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ कैल्शियम इज 40 and then mass of carbon is 12 and then mass of oxygen is 1 oxygen is 16. How many oxygen are there? There are 3 oxygen here and 3 and then plus solve this, 40 plus 12 plus 48 is equal to 100 U अथवा हम कह सकते हैं 100 ग्राम। This is the molecular mass of calcium carbonate। ये कंपाउंड बना, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, 100 ग्राम या 100 ग्राम। इसको कहेंगे हम GAM, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, and that is based on mass of carbon 12, 1/12 of 1 carbon atom। कार्बन 12 के बेस पे ये एटॉमिक मास डिसाइड होता है। 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन के बेस पे मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट डिसाइड होती है आपकी। यानी कि इस तरह से आप इसका मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास है वो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आया, 100 आया। वी कैन टेक मोर एग्जांपल टू कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास। One example number 1, suppose Delhi used acid, common acid, that is HCl, and then second H2SO4, and then HNO3, and then phosphoric acid H3PO4, and then fifth SiO3। इनका हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सपोज स्टूडेंट टेंशन लिए बिना इसको हम आसानी से कैलकुलेट करना सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास। केमिस्ट्री में फंडामेंटल बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। एटॉमिक मास निकालना पहले आपको आना ही चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ना है तो मोल कॉन्सेप्ट को सीखना है तो एटॉमिक मास को फंडामेंटल आपको क्लियर कर ही लेना है, बेसिक। चलिए हम सबसे पहले HCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। HCl, H for hydrogen, here 1 atom of hydrogen प्लस 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू हाइड्रोजन का मास 1.008, 1 ही हो जाएगा राउंड अप, प्लस 1 इंटू मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम इज 35.5। तो 35.5 प्लस
1.0081, यानी कि मास ऑफ HCl मोलर मास 36.5 ग्राम। इसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नाउ सेकेंड एग्जांपल H2SO4 sulfuric acid। Sulfuric acid का molecular mass, here how many atom of H, 2 atom of hydrogen, and then 1 atom of sulfur, and then 4 atom of oxygen. Student, calculate molar mass. 2 into mass of 1 atom of hydrogen is 1.008, means round up 1, plus 1 atom of sulfur, mass of sulfur atom is 32, and then mass of 4 atom of oxygen, 1 oxygen ka mass 16, 16 for the 64, then 64 plus 32 plus 2 1 ja 2. So mass of H2SO4 is 98 U unified या GAM ग्राम एटॉमिक मास। तो इस तरह से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास डिसाइड करना हम सीखेंगे। HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास ऑफ HNO3? Here how many atom of nitrogen are there? 1 atom hydrogen plus 1 atom of nitrogen plus 3 atom of oxygen. So mass of 1 hydrogen atom is 1 plus mass of 1 nitrogen atom is 14 plus mass of 3 oxygen atom is 16. Solve this. 1 plus 14 plus 3 16 जा 48। टोटल सम अप कर लेते हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 63 U और एक 63 ग्राम एटॉमिक मास ग्राम। इसको कहेंगे एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। तो वो नाइट्रिक एसिड का क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो HCl, H2SO4, HNO3। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट H3PO4 phosphoric acid। molecular mass of phosphoric acid H3PO4। H3PO4 example number 4 here H3PO4। H3PO4 का molecular mass निकालने जा रहे हैं हम। तो how many atom of hydrogen are there? 3 atom of hydrogen plus 1 atom of phosphorus plus 4 atom of oxygen. So 1 hydrogen containing mass 3 into 1 plus 1 of phosphorus mass 31 plus 4 into mass of oxygen 16. So calculate 16 for the 64 plus 31 plus 3. तो मास ऑफ H3PO4 इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 8 एंड देन 9 98 ग्राम एटॉमिक मास GAM ग्राम एटॉमिक मास। ये इसका क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास अथवा U यूनिफाइड। नाउ एग्जांपल नंबर 5 HIO। 4 के बाद 5th एग्जाम्पल पे हम एंट्री कर रहे हैं। 1 2 3 एंड देन 4 5th HIO3 का हम मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। HIO3 here how many atom of hydrogen are there? Student, 1 hydrogen atom here and then 1 iodine atom. And how many oxygen atom are there? 3 oxygen atom. So 1 H plus 1 of I plus 3 of O, 3 atom of oxygen. Mass of hydrogen atom is
1.008 means round up 1. Iodine. What is the molecular mass of iodine? 127. 127 plus mass of oxygen atom. One oxygen contains 16 gram. Mass of oxygen atom 16 gram. So calculate this. 1 plus 127 plus 3 into 16 means कितना हो जाएगा स्टूडेंट 48. So mass of HiO3 is how much? 128 plus 48 16 carry का 1 3 और 4 7 and 1 176 U unified or gram atomic mass. इसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड. तो ये कंपाउंड बनता है वो मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म कंपाउंड. तो मास ऑफ कंपाउंड इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास. पूरे कंपाउंड के मास को हम GM अथवा GMM भी कह सकते हैं. और मॉडर्न एटॉमिक मास किसके बेस्ड है? कार्बन एटम के बेस्ड है. इस तरह से हमने 5 एग्जांपल लिए HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 और 5th एग्जांपल जो हमने सॉल्व किया है वो है आपका HiO3. इस तरह से हमने एटॉमिक मास ऑफ एसिड. These both are the 5th example is acid. This is the atomic mass or molecular mass of acid. MW of acid. हम ऐसा शॉर्टली इसको मोलिकुलर वेट अथवा मास भी कहते हैं. ये किसका लिया है हमने? एसिड का मोलिकुलर मास एग्जांपल लेके इसको हमने कैलकुलेट किया है. अब हम आगे जा रहे हैं. कोई बेस, ये तो थे एसिड. अब हम बेस का मोलिकुलर मास निकालना सीखेंगे. फिर एसिड बेस सॉल्ट एग्जांपल लेते हैं कुछ कंपाउंड का. तो इस तरह से हमने ये एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना सीखा है. प्रैक्टिस आप करिएगा, थोड़ा सा बेसिक्स है ये, आपको आता भी होगा. आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस. बेस क्या होते हैं? विच डिजोल्व इन वाटर एंड गिव OH माइनस आयन. एसिड क्या होंगे? जो वाटर के अंदर डिजोल्व करने पर क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं. और बेस वो होता है जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं. तो हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस. देख लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस. बेस का मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ से निकालना सीखेंगे. मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस. नंबर 1 NaOH, KOH, CaOH whole twice, and then one example number 1, 2, 3, Na2CO3 and then NH4OH. These both are base. So molecular mass of NaOH. How many atoms of Na are there? 1 Na, 23 plus how many oxygen atoms are there? 116 plus mass of hydrogen atom 1. So molecular mass of NaOH is 40. Molecular mass of NaOH is
40 U और GAM मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ GMM ग्राम मोलिकुलर मास। Second example, potassium hydroxide. Mass of potassium hydroxide can be calculated by mass of potassium 39 plus mass of oxygen 16 plus mass of hydrogen is 1. So molecular mass of potassium hydroxide is 39, 40 or 16, 56 gram GAM, gram atomic mass or a gram molecular mass. Now mass of CaOH whole twice, calcium hydroxide, CaOH whole twice. Combined form element है, one calcium atom है, whole twice means two oxygen atom and two hydrogen atom. Write the form Ca plus 2 into OH. देखिए कैल्शियम का मास होता है वो होता है 40, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 हाइड्रोजन, ये हो गया 17, 17 टू जा 34 प्लस 16 मास हो जाएगा इसका 74 U यूनिफाइड और एक ग्राम एटॉमिक मास GAM ग्राम एटॉमिक मास। इस तरह से हुआ करता है ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। फोर्थ एग्जांपल Na2CO3 2 atom of sodium here, 1 atom of carbon atom and 3 atom of oxygen. So you have to calculate the molecular mass of calcium carbonate. 2 into 23 plus 1 atom of carbon. So mass of 1 atom of carbon is 12 plus 3 into mass of 16 of oxygen. 1 atom का mass oxygen का 16 है, तो आपका इस तरह से हो जाएगा 46 plus 12 plus 48. So total इसका molecular mass होगा वो हो जाएगा 8, 10 और 6, 106 GAM ग्राम एटॉमिक मास और एक ग्राम molecular mass Na2CO3. Now example number 5 is the NH4OH. NH4OH, so ammonium hydroxide, molecular mass of ammonium hydroxide. Here 1 atom of nitrogen, mass of 1 nitrogen is 14 and 4 atom of hydrogen, 4 into mass of hydrogen plus oxygen plus 1 atom of hydrogen. So नाइट्रोजन का मास 1 एटम ही है यहाँ पर नाइट्रोजन, सो 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, पूरे को सॉल्व कर लो, 2 4 1 जा 4 प्लस 17 प्लस 14 कितना हो जाएगा 18 और 17 35 ग्राम एटॉमिक मास। इस तरह से आपका जो ग्राम एटॉमिक मास निकाल